شخصیات کو گرفتار کرنے والے نیب آفیسر کا پیچھا کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب نے اسلام آباد پولیس کو ڈپٹی ڈائریکٹر اسد جنجوعہ کو ہراساں کرنے کے واقعے سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے نیب کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسد جنجوعہ نے آصف علی زرداری، فریال تالپور اور شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا تھا۔ نیب کے مطابق مشکوک گاڑی دفتر سے گھر جاتے ہوئے نیب آفیسر کا پیچھا کرتی رہی ہے۔ کئی اہم شخصیات کو گرفتار کرنے والے نیب آفیسر کا پیچھا کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد اویس سے۔ اویس، بتائیے گا اس بارے میں؟ ہاں بالکل، مشکوک گاڑیوں کا اہم شخصیات کو گرفتار کرنے والے نیب افسر کا پیچھا کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب نے اسلام آباد پولیس کو ڈپٹی ڈائریکٹر اسد جنجوعہ کو حراست کرنے کے واقعے سے متعلق آگاہ کر دیا، جبکہ اس سے متعلق ایف بھی تھانہ گولڈا میں درج کر لی گئی ہے۔ پولیس نے نیب کی درخواست پر نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اسد جنجوعہ نے آصف زرداری، فریال تالپور اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا، اور اسد جنجوعہ نیب اور دلی ٹیم کی چھاپہ مار ٹیم کے سربراہ ہیں۔ اب تک جتنے بھی نیب میں کیسز نیب راولپنڈی میں درج ہوئے ہیں، جو بھی دائر ہوئے ہیں، تاہم جتنے بھی بڑی شخصیات کو گرفتار کیا گیا اس ٹیم کے سربراہ اسد جنجوعہ ہیں، اور اسد جنجوعہ نے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا ہے کہ مشکوک گاڑی دفتر سے گھر جاتے ہوئے نیب افسر کا پیچھا کرتی ہے، جبکہ گاڑی کا نمبر بھی باقاعدہ ایف آئی آر میں پولیس کو فراہم کر دیا۔ تاہم پولیس نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ سی سی کیمرہ کی فوٹیج حاصل کی گاڑی کا۔ ٹھیک ہے محمد اویس، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں سواں بس اڈے کے قریب فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ ملزمان اسلام آباد کچہری میں پیشی سے واپسی پر سواں کے قریب فائرنگ کی۔ زخمی ہونے والے تمام افراد راہگیر تھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے راولپنڈی سے، جہاں سواں بس اڈے کے قریب فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے خالد چودھری سے۔ خالد، بتائیے گا اس واقعے کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے سواں بس اڈے کے قریب پیش آیا، اور بتاتے چلیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 گروپ تھے جو زمین کے تنازع پر ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور اسلام آباد کچہری سے واپسی پر سواں اڈے کے قریب ان کا سامنا ہوا تھا، جس پر دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر آزادانہ اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل سوار سمیت 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے، جنہیں ریسکیو 112 نے فوری ریسکیو کرتے ہوئے مقامی اسپتالوں میں منتقل کر دیا، جبکہ پولیس کے تعاقب پر ملزمان ایک گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی میں دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ خالد چودھری آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کو سفارتی سطح پر ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے امریکی پیشکش کی حمایت کرتی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنینگ نے کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے امریکہ سمیت عالمی برادری کے کردار کے حامی ہیں۔ بھارت کو ایک اور شکست، سفارتی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا، چین نے مسئلہ کشمیر کی حمایت کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنینگ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے امریکی پیشکش کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے امریکہ سمیت عالمی برادری کے کردار کے حامی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پاکستان اور بھارت کا مشترکہ ہمسایہ ملک ہے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ دونوں ملک ہم آہنگی سے رہیں، دونوں فریقین مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل کریں، دیگر تنازعات بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے ہوں گے، خطے میں امن کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے بتایا کہ نریندر مودی نے خود انہیں ثالثی کے لیے کہا ہے۔ پاکستان نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا، اور اب چین نے بھی امریکی پیشکش کو پرشائن قرار دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب قرار دے دیے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگن اورٹیگس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ میں کامیاب مذاکرات ہوئے۔ اب دونوں ممالک کے تعلقات میں پیش رفت کا وقت آ گیا ہے۔ چاہتے ہیں افغان عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، تاہم خطے میں امن کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ میں مثبت و کامیاب مذاکرات ہوئے۔ اب پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت کا وقت آ گیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب قرار دے دیے۔
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मॉर्गन ओर्टेगस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में मुतालिक अहम अमूर ज़ेरे गौर आए। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मॉर्गन ओर्टेगस का मजीद कहना था कि इमरान खान ने अफगान हुकूमत और तालिबान को मुज़ाकरात के लिए जोर दिया। अफगान अमन अमल में अमरीका की नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता। हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे, ताहम खित्ते में अमन के लिए कोई खत्मी डेडलाइन नहीं दे सकते। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के जरिए जंग के खात्मे की कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक किया। माइक पोम्पियो ने अफगान सदर को यकीन दिलाया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी एशिया से मुतालिक हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई है। अशरफ गनी को आगाह किया कि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ टेनफोर्ड और नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद को अमन की कोशिशों के सिलसिले में काबुल भेजा गया है। और अब बात होगी पाकिस्तान के लिए एक और एजाज की। मलिहा लोधी अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। इजलास में 53 ममालिक ने मलिहा लोधी की हिमायत की। इस मौके पर मलिहा लोधी ने कहा कि नायब सदर मुंतखब होना पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद है। अक़वाम मुत्तहिदा को मजीद फाल बनाने की कोशिश करूंगी, तरक्की पजीर ममालिक के मफाद के लिए काम करूंगी। इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों में से हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार को कानूनी कार्रवाई का नोटिस भिजवाया है। नोटिस में कहा गया है कि बरतानवी अखबार ने उनसे मुतालिक झूठी और बेबुनियाद खबर शाया की। ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। शहबाज शरीफ के लंदन में वकला ने कानूनी कार्रवाई का नोटिस तैयार किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम, बताइएगा क्या कहा गया इस नोटिस में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ के बरतानी अखबार डेली मेल को जो है अपना कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने बताया है कि डेली मेल के रिपोर्ट डेविड रोज ने उसके खिलाफ मनगढ़ंत और झूठी खबर जो है वो शाया करके उनको और उनके खानदान को जो है ना वो अजियत पहुंचाई है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज के भिजवाए के नोटिस में जो है वो बताया गया है कि उनके ऑनलाइन एडिशन में अपने मुतल्लिक शाया होने वाली खबर जो है वो मनगढ़ंत खबर है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डेविड रोज की खबर झूठे इल्जाम पर मबनी है। उन्होंने कहा 2005 के ज़लज़ले के बाद बहाली के मंसूबों में डेफडेफ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए बरतानवी टैक्स इंतजाम का पैसा नाजायज तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम है, जबकि ये इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका। तो उधर मुत्तहिदा अपोजिशन को मॉल रोड लाहौर पर जलसा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन और 1900 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अपोजिशन के खिलाफ 3 मुकदमा थाना सिविल लाइन और 2 कला गुजर सिंह में दर्ज किए गए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्टी की तंजीम का इजलास तलब कर लिया है। इमरान खान ने आज ही तुम्हें एक साल का हिसाब देना होगा। दफा 144 नाफिजर रैली क्यों निकाली? मुत्तहिदा अपोजिशन को माल रोड लाहौर पर जलसा करना भारी पड़ गया। पुलिस ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन और 1900 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, साउंड सिस्टम एक्ट, सड़क ब्लॉक करने, नुक्से अमन समेत मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। इससे पहले बदवालों को फैसलाबाद से रैली निकालना भी महंगा पड़ गया था। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उधर नून लीग ने पंजाब की पार्टी तंजीम का इजलास बुला लिया। एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में कल होने वाली रैली का जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर से शिरकत न करने वाले अहदेदारों की सरजनिश भी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भुट्टो खानदान के दरबारी बनकर सिंध से नाइंसाफी न करे, खुशामदी और चापलूसी छोड़कर आवाम की खिदमत करे। मुआविन ख़ुसूसी बराए-ताज फिरदौस आशिक आवान ने कलंदर की नगरी में सिंध हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। अपोजिशन को भी खरी खरी सुनाती रहीं। कहा कि अपोजिशन ने सेनेट में अपना दंगल शुरू कर रखा है। मईशत की तबाही और महंगाई का वावेला करने वाले स्टेज अदाकार मुल्क को इस नहज पर पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे।
मैं तो अंदर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर आका सिराज दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिकवा किया। उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, छोटा भाई हज पर जा रहा है। सियासी आदमी हमेशा चाहता है कि वो पब्लिक के साथ हो। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर आसिफ रजा सिंह हाई कोर्ट में मसरूफ होने के बाइस पेशी पर न आ सके। आका सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई और ये समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। आका साहब, कल जॉइंट ऑपोजिशन का इतना बड़ा जलसा हुआ, क्या कहेंगे उस बारे में? मुस्तकबिल में क्या नजर आ रहा है आपको? भाई मैं तो अंदर हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो सारी चीज़ें देखी होंगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि मैं बाहर आ जाऊँ तो फिर आपको सही देखूंगा तो कमेंट कर सकूंगा कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। आगा साहब, वकील साहब ने कहा है कि आपको कहीं जाना है, कहाँ जा रहे हैं आप? किसी मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, मैं इधर ही हूँ। मेरे छोटे भाई हज पे जा रहे थे, ठीक, छोटे भाई हज पे जा रहे थे तो उन्होंने एप्लीकेशन दी हज के लिए, वो जो टेम्पररी परमिट देते हैं कि वो हज करके वापस आ जाए। ठीक है। अच्छा, आपने कितना मिस किया कल के जलसे में? जी, आपने कितना मिस किया कल के जलसे में? मिस, सियासी आदमी तो हमेशा चाहता है कि पब्लिक में हो। मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल का आगाज हो गया। महकमे मौसमियात एतवार से सिंध और बलूचिस्तान के वस्ती और शुमाली अजला में जमकर बरसने की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शदीद बारिशों के बायस दरियाओं, बरसाती नालों में तोक़यानी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग है। दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। कराची में इतवार से मंगल तक तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। 27 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। मंगला, तरबेला, दरियाए चनाब, सिंध और मुल्हका नदी नालों में तुग़यानी। तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी। लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। गर्मी की छुट्टी हो गई। गुज़िश्ता रोज की बारिश से जमा होने वाला पानी नशेबी इलाके से ताहाल ना निकाला जा सका। मूसलाधार बारिशों से दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद। दरियाए झेलम से मुल्हका आबादियों के लिए फ्लड वार्निंग जारी। कराची में इतवार से मंगल तक तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी गई। पिछला 26 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर आज भी तेज बारिश होगी। पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मालाकंड और हजारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। लाहौर के इलाके मोमिनपुरा में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक हो गए, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। मरने वाले 3 बहन भाइयों की शिनाख्त 6 साला खुर्रम शहजाद, 8 साला हारून और 10 साला सोनिया के नाम से हुई। मोमिनपुरा में रात गए घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 10 अफराद दब गए, 3 बच्चे जान बहक। मरने वाले 3 बहन भाइयों की शिनाख्त 6 साला खुर्रम शहजाद, 8 साला हारून और 10 साला सोनिया के नाम से हुई। तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 9 साला रोहिला और बच्चों की मां रजिया बीबी शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई। कैमरामैन शाहिद अली के साथ अता मोहम्मद, रियो न्यूज़, लाहौर। मानसून की बारिशों के बायस दरिया सवात के बहाव में मुसलसल इजाफा हो गया है। मट्टा अपर सवात के सियाहती मकाम कालाम उतरड़ो धमाका झील में लैंड स्लाइडिंग हुई है, जबकि कालाम और उतरड़ो के माबैन जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी रेले से सड़क भी बह गई है, जबकि इंतजामिया ने दरिया सवात से आवाम को दूर रहने की हिदायत कर दी हैं। मकामी आबादी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो गई हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हारून सिराज से। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाइस दरियाई सवात के बहाव में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। इस सिलसिले में जो है
दरिया स्वात के करीब आबादियाँ जो है वो महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात में आइंदा पीर के रोज़ तक बारिश का सिलसिला वक्फे तक जारी रहेगा, जिसके बाइस दरिया स्वात के बहाव में जो है मज़ीद इजाफा हो सकता है और मुमकिन सैलाब का ख़तरा भी पेश आ सकता है। इस सिलसिले में जो है डिप्टी कमिश्नर स्वात के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ नंबर आवेज़ा किए गए हैं और जो भी लोगों को मुश्किलात का सामना है या मुमकिन सैलाब के ख़तरा के पेश उनको कोई मुश्किल है तो वो दफ्तर DC स्वात या डिप्टी कमिश्नर स्वात के दफ्तर पे उन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है और अपने शिकायत वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पे दरिया स्वात के बहाव में जो है मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी। जबकि बालाकोट में नारान के सयाहती मकामात पर शदीद लैंडस्लाइडिंग है, सैकड़ों सयाह फंस कर रह गए हैं। जलखड में मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की लाशें निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट का कहना है कि महसूरीन तक खुराक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। बालाकोट में नारान के सयाहती मकामात जलखड और बुढ़ावई में शदीद लैंडस्लाइडिंग, रस्ते बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के मलबे तले दबकर जाँबाक होने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जाँबाक होने वाले मियाँ बीवी का ताल्लुक लैया से है। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट का कहना है कि शाराय कागान की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह गाड़ियों में महसूर हो गए। खवातीन और बच्चों ने रात खुले आसमान तले गुजारी, ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट ने महसूरीन तक खुराक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा हेलीकॉप्टर के बगैर सयाहों तक फौरी रसाई नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से हेलीकॉप्टर फराहम करने की अपील की है। इस वक्त पाकिस्तान के दीगर शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे अपने नुमाइंदान के जरिए। पेशावर से होंगी नायाब रिजवान, जबकि कराची से हमारा साथ देंगे मोना सिद्दीकी। सबसे पहले हम रुख करेंगे पेशावर का, नायाब रिजवान से बात करेंगे। नायाब, क्या हालात और मनाजिर हैं पेशावर में इस वक्त? जी बिल्कुल, पेशावर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। आसमान को मुकम्मल तौर पर बादलों ने ढक लिया है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। पूरे सूबे में चंद रोज़ से सख्त किस्म की गर्मी थी, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। गुज़िश्ता रोज़ सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया है। कल से मुकम्मल तौर पर आसमान पर बादलों का राज है, हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। गुज़िश्ता रोज पाड़ा चिनार में 30, मालम जबा में 14, जबकि दीर में 6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और इसी तरह पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों समेत पूरे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई थी, जिसके बायस गर्मी का जोर भी टूट गया था। आज भी मौसम काफी जबरदस्त है, मौसम काफी खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदे 24 घंटों के दौरान पेशावर को हाट, मर्दान, मलकन, हजारा और समेत DI खान में कहीं पर हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी, जिसके बायस पेशावर के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है वहाँ पर। और उसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, हजारा डिवीजन, मलकन डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है ये 24 घंटों के दौरान वक्फे से नायाब आप हमारे साथ रहेगा। पेशावर के बाद रुख करेंगे कराची का, जहाँ रात के होने वाली बूंदाबांदी से शहर का मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी रहेगा। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। मोना, बताइएगा कराची के मौसम का अहवाल। जी, शहर कायद का मौसम आज खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं। इस भरपूर खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अपने नाज़रीन के लिए हम इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जब मौसम खुशगवार हो और उसका भरपूर लुत्फ उठाने के लिए जब तक समंदर पे ना आए तो मज़ा कुछ अधूरा रहता है। इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ, हवाएँ चल रही हैं और बादलों के डेरे हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। और जबकि आज दिन में भी और सुबह और शाम के औकात में जो है बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। जैसा कि इस वक्त भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बूंदाबांदी इस वक्त भी जारी है। आज का मौसम जो है खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस मौसम को भरपूर तौर पर इंजॉय करने के लिए हम भी जो है इस वक्त सी व्यू पर मौजूद है और भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी, अपडेट करी थी कराची से। पेशावर से हमें ज्वाइन किया था नायाब रिजवान ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर के अक्सर इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार है, लेकिन दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है।
और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार को कानूनी कार्रवाई का नोटिस भिजवा दिया। जलजिला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्जाम सरासर झूठ है। डेली मेल ने बेबुनियाद खबर शाया की, नोटिस का मतन। अहम शख्सियात को गिरफ्तार करने वाले नैब ऑफिसर का पीछा किए जाने का इंकशाफ। नैब ने डिप्टी डायरेक्टर असद जंजुआ को हिरासत करने से मुतालिक पुलिस को आगाह कर दिया। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और रावलपिंडी में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, जख्मियों की तादाद 6 हो गई। मुल्जिमान इस्लामाबाद में कचहरी में पेशी से वापसी पर सवाब बस अड्डे के करीब फायरिंग की, तमाम जख्मी राहगीर हैं। सक्कर में दरिया सिंध में डूबकर पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले बच्चों का मामला। नियो न्यूज ने एनी शाहिदीन 2 बच्चों की मजीद सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। दरिया से वापसी पर जाते हुए दोनों बच्चे सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं। गुज़श्ता जुमे को दरियाई सिंध में नहाने के लिए आने वाले 8 बच्चों में से 6 डूबकर लापता हो गए थे। हम बात करेंगे इस पर सिबगतुल्लाह से। सिबगतुल्लाह, मजीद बताएगा इस फुटेज के बारे में। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता जुम्मे जो है वो 8 बच्चों में से 6 बच्चे जो है वो दरिया सिंध में डूबकर लापता हो गए थे, जबकि 2 बच्चे जो हैं वो उन्हीं के जो दोस्त हैं वो वापस आ गए थे। पुलिस ने जो है लाशें ना मिलने के बाद मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। नियो न्यूज को जो है एक नई फुटेज जो है वो मौसूल हुई है, जिसमें जो है वो 8 बच्चों में से 2 बच्चे जो है वो वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जब हमने पुलिस का से रब्ता किया है तो उनका कहना है कि जो जैन है उसके जो दिए गए बयान है वो बदल रहे हैं। इस हवाले से अब इसको दोबारा जो है इसकी तहकीकात के लिए हम सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है और बच्चों से दोबारा तफ्तीश का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका सिबगतुल्लाह। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत से खबर है, जहां पर जाली अकाउंट्स केस में डॉक्टर डिंशा के जुडिशियल रिमांड में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। अदालत ने डॉक्टर डिंशा को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने डॉक्टर डिंशा को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है और जुडिशियल रिमांड में 1 माह की तौसीह कर दी गई। जजा सजा का फैसला जमानत के मुकदमे में नहीं हो सकता। जमानत के मुकदमे में जजा सजा का फैसला होने लगे तो मरकजी केस का क्या बनेगा। किसी जुर्म की सजा या जजा का फैसला मरकजी मुकदमे में होता है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत मनसूखी केस में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए। सज्जाद उर्फ शादा की जमानत मनसूखी के लिए मोहम्मद जमान ने अदालत से रुजू किया था। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जहां से अब्बासी से, जहां से बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। मनसूखी से मुतालिक इसमें अहम रिमार्क किए हैं। जस्टिस का कहना था जमानत में सजा फैसला कैसे जजा जो फैसला है वो जमानत के फैसले नहीं हो सकता, क्योंकि जमानत मुकदमे में जजा फैसला करने से जो मरकजी मुकदमा है वो मुतासिर होने का खतरा होता है। जजा का फैसला मरकजी मुकदमे में होता है, लेकिन जब जमानत का केस जो है वो अदालत पूछती है उसमें इस केस के जो हकायक हैं तो उनके ऊपर बात नहीं की जाती। तो ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहां से अब्बासी आपका। जबकि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सफा गोल्ड मॉल इस्लामाबाद के राजी अलॉटमेंट मनसूखी केस की समाअत हुई। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीडीए ऑफिसर्स के मामलात बहुत खराब हैं। नए सीडीए चेयरमैन का हाल कोई अच्छा नहीं लग रहा। जस्टिस गुलजार ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सीडीए चेयरमैन को कमिश्नर ही रहने दें। इस्लामाबाद के मेयर शेख अंसर ने अदालत को बताया कि उनका हाल भी मेयर कराची वाला है। 3 बरस से फंड्स नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मजबूरन इस्लामाबाद में इंतखाबात करवाए गए। अदालत ने सफा गोल्ड मॉल के वकलात को हिदायत की कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, वहीं रुजू करें।
कराची में अमन अमान कैसे कायम किया जाए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी कि शहर में 2000 से ज़ायद मकामात पर KMC और सिंध पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं। मजीद 10,000 सर्वेलेंस कैमरे लगाने हैं। फोरेंसिक साइंस लैब पर ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस मंसूबे में सिंध हुकूमत को टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। आपको ये भी बताएं कि पेनकासन में 30 एकड़ ज़मीन लैब फोरेंसिक मंसूबे के लिए ली गई है। कराची, हैदराबाद और लाड़काना में फोरेंसिक की सहूलियात मौजूद हैं। DNA लैब लियाकत यूनिवर्सिटी जाम शोरों में है। वज़ीर आला सिंध ने फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब को भी कायम करने की हिदायत की। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध हुकूमत का इंटरनेट पर 19.5% सेल्स टैक्स के नफाज का फैसला टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि सिंध हुकूमत का इंटरनेट पर 19.5% सेल्स टैक्स के नफाज का फैसला टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। इसका बराह रास्त नुकसान नौजवानों खुसूसन तालिबे इल्मों को होगा। आसिफ जरदारी की सालगिरह की तकरीब में रिवायती बदनस्मी नजर आई। इस्लामाबाद F8 कचहरी में साबिक सदर की सालगिरह के मौके पर केक काटने की तकरीब में वकला आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। वकला की जानिब से गालिम गलोच और हाथापाई की गई। सीनियर वकला ने लड़ने वाले वकीलों में बीच बचाव करवाया। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे, आपको अपडेट करें कि आसिफ जरदारी की सालगिरह की तकरीब में रिवायती बदनस्मी नजर आई। इस्लामाबाद F8 कचहरी में साबिक सदर की सालगिरह के मौके पर केक काटने की तकरीब में वकला आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। वकला की जानिब से गालिम गलोच और हाथापाई हुई। सीनियर वकला ने लड़ने वाले वकीलों में बीच बचाव करवाया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब में रिवायती बदनस्मी नजर आई। पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से इस्लामाबाद F8 कचहरी में साबिक सदर की सालगिरह के मौके पर केक काटने की तकरीब में वकला आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके मनासिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वकला की जानिब से गालिम गलोच और हाथापाई की गई, जबकि इतलात के मुताबिक सीनियर वकला ने लड़ने वाले वकला में बीच बचाव करवाया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस से। ओवैस, बताइएगा तनाज़ा शुरू क्यों हुआ? जी बिल्कुल, आज F8 कचहरी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह केक कटिंग की तकरीब जो है बदनज़मी का शिकार किया। वकला गुत्थम गुत्था वकला की जानिब से गलोच और हाथापाई की तमाम सीनियर वकला ने लड़ाई वकला में मुश्किल से बीच बचाव करवाया। लड़ाई क्योंकि पेपर्स लॉ उनकी जानिब से तकरीब अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकामी हुकूमतों को रवा माली साल के तरक्याती फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया है। सूबाई महकमा खजाना का कहना है कि 28 अगस्त को खत्म होने वाले बल्दियाती इदारों को तरक्याती फंड्स नहीं दे सकते। लिहाज अली रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिली, तहसील और विलेज और नेबरहुड काउंसलर को रवा माली साल के सालाना तरक्याती फंड्स रोक लिए। महकमा खजाना के मुताबिक मकामी हुकूमतों की मुद्दत 28 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अक्टूबर के बाद कायम होने वाली नई मकामी हुकूमतों को तरक्याती फंड जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में मकामी हुकूमतों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लिहाजा जनूबी एशियन ममालिक में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 660 से तजावुज कर गई है। हजारों अफराद ताहाल लापता है, लाखों बेघर हो गए। उधर यूरोप में गर्मी का 500 साल रिकॉर्ड टूट गया। फ्रांस में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। फ्रांस के शिमाली इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी एशियाई ममालिक में सैलाब से तबाही, यूरोप में कहर ढाती गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। भारतीय रियासत बहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, हजारों अफराद लापता। नेपाल और बांग्लादेश में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं।
उत्तर यूरोपीय ममालिक में हीट वेव जोर पकड़ने लगी। फ्रांस में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर गया। शुमाली इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। जर्मनी में भी गर्मी के बायस तयाकी के दौरान 2 रोज में 3 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में 16 साल बाद सजाए मौत बहाल कर दी गई। अटॉर्नी जनरल बिल बार ने कत्ल के जुर्म में मुलव्विस 5 कैदियों की सजाए मौत की तारीख तय कर दी। उन्होंने कहा कि अदलिया की जिम्मेदारी इंसाफ फराहम करना है। ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स को एक जहरीले इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत पर अमल दरामद के अहकाम दिए, जबकि इससे कबल 3 इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते थे। आइन की 8वीं तरमीम जिसके तहत दर्दनाक सजा पर पाबंदी आयद की गई थी। अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई हैं। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान तो हैं मगर खरीदारी के लिए पुरअज़्म भी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास शिराज से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान को चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए जो फैसलाबाद में जो मवेशी मंडी है वो सजा दी गई हैं। जो न्यामुआना मवेशी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो मॉडल मंडी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो देखा जाए तो हर किस्म के जानवर तो यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है खरीदारी यहाँ पे आ रहे हैं और मायूस होकर वापस लौट रहे हैं, जबकि व्यापारी जो है वो अपना रोना रो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके क्या मसाइल हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी आप बताइए क्या कहेंगे। जी भाई साहब, और तो कोई मसला नहीं है, अगर इतनी दूर से आते हैं हमें अखराजात भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो किराया भी ज़्यादा पड़ता है। महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे रेट ना बढ़ा हो। टैक्स लागू होने की वजह से गरीब आदमी को बहुत बड़े मसाइल हैं कि तनख्वाहदार मुलाजिम वो भी नहीं आ रहा है, और इसके अलावा गरीब आदमी कोई भी है तो आने से कतराता है कि हमें टैक्स वो भी अदा करना पड़ेगा, बैंकों का भी टैक्स निकालने के भी पैसे, लगाने जमा कराने के भी पैसे। उनका ये कहना है कि इस दफ़ा उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्हें जो अखराजात उनके हुए वो भी नहीं मिलेंगे और अपनी जेब से खर्च करके वापस जाना पड़ेगा, जबकि अभी भी जो शहरियों का ये कहना है, वो जो उनका ये कहना है कि यहाँ पे आते हैं लेकिन कीमतें सुन के वो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि कीमतें इस कदर ज़्यादा है जिसकी वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। जी थरपारकर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरी इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यूनियन काउंसिल सोबियार के गाँव में मवेशियों में चारे की तकसीम शुरू कर दी गई है। 17 लाख से ज़ायद मवेशियों को वबाई अमराज से बचाव की वैक्सीन भी दी जा रही है। मरियम सिद्दीक़ा रिपोर्ट करेंगी। थरपारकर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO की जानिब से मवेशियों को अमराज से बचाव की PPR वैक्सीन और चारे की तकसीम शुरू। तहसील डेपलो के गांव बगलियार में इफ्तिताह कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गनीर रहमान ने किया। हर मवेशी मालिक को 7 बोरियां चारा दिया जा रहा है। तहसील कलोई में मुहिम तेजी से जारी है। खुराक की कमी का जो पीरियड है इस इलाके में, उस दौरान हम कम से कम 2 से 3 महीने तक लोगों को इस किस्म की खुराक दे जिससे जानवर उसकी सेहत पे अच्छा असर पड़े, कमजोर न हो और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़े, पैदावार भी बढ़े और उसके साथ साथ उसकी अमवात में कमी भी वाक़या हो। 4 यूनियन काउंसिलें हमने मिट्टी की शुरू की है और 4 यूनियन काउंसिलें हमने कलोई की शुरू कर दी है। उसमें हमें इस वक्त तक 1 लाख जानवर हमने यहाँ पे कर दिया है मिट्टी में और 1 लाख से ज्यादा हमने जानवर कर दिए हैं कलोई में। महकमा लाइफ स्टॉक के ताउन से तहसील छाछरो, डाहली और नंगर पार्क में मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। ये वैक्सीन और चारा जानवरों को बीमारियों से बचाने के अलावा सेहतमंद भी बनाता है। कैमरामैन तारिक अली के साथ मरियम सिद्दीका, नियो न्यूज़, थरपारकर। ईद कुर्बा करीब आते ही जहां मवेशी मंडियां फाल हो रही, वहीं जानवरों की आराइशी अशिया के स्टॉल्स भी सज गए हैं। खूबसूरत और दिलकश ज़ेवरात कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। शाहकोट से कामरान अली की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के करीब आते ही जहां लोग जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, वहीं जानवरों को सजाने संवारने के लिए आराइशी सामान के स्टॉल्स भी सज गए हैं। झांझरें, टल्ली, माला, माथा पट्टी, गानी सेट की तैयारी का काम तेजी से जारी है, जिन्हें पहनकर जानवरों की शान ही निराली नजर आती है। हम कुर्बानी के जानवरों का आराइशी सामान तैयार करते हैं, जिसमें तलियारा, गानी, माला, झांझर शामिल हैं।
लोग हमसे बड़े शौक से ये सामान खरीदने आते हैं। जानवरों की आरइश का सामान अगरचे महंगा है, लेकिन शहरी कहते हैं कि कुर्बानी के जानवरों को सजाकर न सिर्फ वो अपने शौक की तस्कीन करते हैं बल्कि जानवर से मोहब्बत के इजहार का भी जरिया है। मवेशी मालकान का कहना है कि ताज़ीन और आरइश के सामान के इस्तेमाल से न सिर्फ इनकी कीमत बढ़ जाती है बल्कि इसकी शान में भी इजाफा हो जाता है। इसीलिए तो आरइशी सामान की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कामरान अली, न्यूज़, शाहकोट। पाकिस्तान के पहले बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का के चौथे सीजन का आज से आगाज होगा। मुख्तलिफ शहरों से चुने गए स्टार्टअप्स अपने आइडियाज इन्वेस्टर्स के सामने पेश करेंगे। आइडिया करोड़ों का के पिछले 3 सीजन्स में स्टार्टअप्स 40 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब रहे। बेहतरीन कारोबारी आइडियाज पेश करने वालों के लिए सुनहरी मौका। ये एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, 1 करोड़ रुपए देने के तैयार हूं। न्यूज़ पर मुल्क के पहले बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का सीजन 4 का आगाज आज पेश किए जाने वाले पहले प्रोग्राम में मुल्क की नामवर कारोबारी शख्सियात मुनव्वर इबादुल्ला, नईम ज़िम्मेदार और मुनिस रहमान स्टार्टअप्स के आइडियाज सुनेंगे। आपके पास मुख्तलिफ शहरों से चुने गए स्टार्टअप्स फार्म्स मेटो और ogo.pk पर अपने आइडियाज पेश करेंगे। सीजन 4 को पिछले सीजन से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। हालिया सीजन की हर किस्म में मुख्तलिफ शोबों से गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले सुपर हीरोज भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आइडिया करोड़ों का अपनी नौयत का मुनफरिद और मकबूल तरीन शो है, जो सुपीरियर ग्रुप की पाकिस्तान को इकोनॉमिकल सुपीरियर बनाने की काविशों की एक कड़ी है।